Through Hello. Shall I start, madam? yes, ma'am. Okay, thank you. Hello, everyone. Good morning to all. So this is our next session. In last session, we'll take a glance of last session. What are topics we have discussed in last session? So we have discussed table tag with row span and call span. Row span is used to merge the number of rows in one cell, and call span is used to merge the number of columns. Then we saw next tag. What is form tag? Form, different form tags we have seen. What is form? It is a small piece of information from the user given to the web. That is a form. Then in that form tags, we have seen different input tags in different types, like input type text, input type password, input type checkbox, input type radio button, input type submit, input type button. Now this type of different types we have seen in input tags. Checkbox is used for multiple choice selection. Then radio button is used for single selection. Then input type text. Text is used to give to input the information up to 20 characters only. Then we have seen text area tag. Whenever you want to insert more than 20 characters information, that time you have to use text area. That also we have seen. Then we have seen form coding, and then different assignments on form. Hope you all perform that form assignments without fail. Okay. Then we discuss about the reference website. W3 Schools is the best website for these tutorials, web development applications. So refer this site. They have seen specified everything, each and every program code and output, and very nicely, and they have given notes also. So refer this site. Then next we have seen different web development tools also, like front page, Dreamweaver. Then there are different tools in market. So from that tool we will discuss front page, but later on. Before that we have 2 tags left. We will finish that first. So our next tag is frame tag. Frame. So what is frame? फ्रेम पता है आपको, जैसे कि अगर आप आपका फाइल एक्सप्लोरर देखते हो, दिस इज फाइल एक्सप्लोरर, तो ये फ्रेम है. फ्रेम मीन्स आपका वेब पेज, आपका पेज जो है
यहाँ पे हम सिंपली पहले कंसेप्ट देख रहे हैं फ्रेम. सो frame means divide your page into number of partitions. See, if you are seeing this file explorer, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये है रिबन. देन यहाँ पे रहता है आपका दिस पीसी एंड डिफरेंट फोल्डर और ड्राइव नेम. पर्टिकुलर ड्राइव आप क्लिक करते हो तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे आता है. Means here we have divided one page into three parts. This one part, this is second part, and this is third part. And if you are clicking on this PC, it will show you this PC content. If you are clicking on C drive, it will show you C drive content here only. Means by clicking something, the new information will get on same page by giving in that page a frame, by dividing that page in a frame, so we can get it. So that is called as frame. Frame means कि पेज को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्ट्स में. ओके, तो ऐसे ही दिस कंसेप्ट वी हैव टू सी इन HTML. So for example, see, suppose I want to make like this web page. ऐसा एक वेब पेज बनाना है मुझे. In that web page, my website name should be in this part only, and this part should be fixed. This part should be fixed. So ये बन गया मेरा एक frame. Then here I wanted to give some list of points. So that on particular point, if I clicking, its information will come in this part, frame C. So here I am making one web page into three parts. I am making three parts of this one web page. तो ये पार्ट मेरा क्या होगा, फ्रेम 1. ये पार्ट मेरा क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा. ये पार्ट भी फिक्स्ड रहेगा. ये पार्ट में जो भी मैं फाइल इंसर्ट करती हूँ या तो जो भी मेरा HTML कंटेंट है यहाँ पे शो हो रहा है. यहाँ पे जो मैं क्लिक करती हूँ, सपोज हाइपरलिंक क्लिक किया, तो अब तक हमने देखा था कि हाइपरलिंक क्लिक करने के बाद इफ वी आर क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक, द लिंक page or link file will open in another web page. But with the help of frame, we can open that linked file or linked web page on the same web page where it is fixed. तो यहाँ पे जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सपोज मैं टेबल पे क्लिक करूँगी तो टेबल का कंटेंट, टेबल फाइल जो मैंने लिंक किया है, वो फाइल यहीं पे मुझे शो होगा. वो फाइल दूसरे फोल्डर में ओपन नहीं होगा. वो फाइल कहाँ पे शो होगा, यहीं पे शो होगा मुझे, यहाँ पे. तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम. तो यहाँ पे फ्रेम के लिए हमें फ्रेम टैग यूज करना है. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. अभी फाइन. तो यहाँ पे अभी हमें फ्रेम टैग यूज करना है. तो HTML में फ्रेम सेट करके टैग है एंड आई फ्रेम, ऐसे दो टैग्स है, फ्रेम सेट एंड आई फ्रेम. तो फ्रेम सेट पहले हम देखेंगे. फ्रेम सेट से क्या हो जाता है कि यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये एक वेब पेज है, इसमें 3 फ्रेम यूज किए, फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3. ओके, तो ये अगर आप ठीक से देखते हो तो यहाँ पे ये जो वेब पेज है ये टेबल फॉर्मेट में है. टेबल फॉर्मेट में कैसे है कि ये एक रो है और ये एक रो है. ये एक कॉलम है, फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम्स है. तो ये टेबल फॉर्मेट में है. अगर आप देखते हो तो रोज एंड कॉलम्स में है. तो ऐसे ही हमें अगर वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स करने हैं तो हम फ्रेम सेट टैग यूज करके वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स हम शो कर सकते हैं. ठीक है, तो विल सी द कोडिंग नाउ. हम पहले अभी कोडिंग देखते हैं. कोडिंग के लिए
open your code file. स्क्रीन शो हो रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है ना? ठीक है। सी नोटपैड का फाइल लेंगे हम पहले. फर्स्ट we open notepad file. In that frame set tag, which tag we will use? Frame set, because in one web page we have to make number of parts. So for every part is our frame. So number of frame, that is called as frame set. So decide first कि आपको आपके वेब पेज में कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए. ओके, तो सपोज मुझे मेरे फ्रेम सेट में 3 रोज चाहिए. कितने चाहिए? 3 रोज चाहिए. तो यहाँ पे आप 3 डायमेंशंस दे सकते हो. ठीक है, फ्रेम सेट में मुझे 3 रोज चाहिए. हर एक रो का आप डायमेंशन दो कि सपोज मुझे फर्स्ट रो 30% चाहिए. फॉर 30% ऑफ योर हाइट ऑफ योर वेब पेज. वेब पेज के हाइट के 30% फर्स्ट रो होगा, 30% सेकंड रो होगा एंड 40% आपका थर्ड रो होगा. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा. फ्रेम सेट, नंबर ऑफ रोज, रोज के डायमेंशन वी हैव डिस्प्ले. देन फ्रेम सोर्स, हर एक फ्रेम में हमें कौन से कंटेंट शो करने हैं, तो उसे बोलते हैं सोर्स एट्रीब्यूट. फ्रेम सेट ग्रुप, ग्रुप है 3 रोज का. 3 रोज मीन्स 3 फ्रेम. 1 2 3. 3 फ्रेम्स में कौन कौन से फाइल्स आपको शो करने हैं. तो हर एक फ्रेम में src एट्रीब्यूट शो करेगा पर्टिकुलर html फाइल और पर्टिकुलर कंटेंट. वो फ्रेम बाद में क्या करना है, आपको क्लोज करना है. ये हुआ सेकंड फ्रेम, ये हुआ थर्ड फ्रेम. अभी के लिए हम कौन सा भी पेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि पार्टीशंस हो रहे हैं या नहीं. ठीक है, सेव द चेंजेस, देन गो टू योर आउटपुट विंडो. Go to your output window and refresh it. And refresh it. शो हो रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सी आवर पेज 30%, 30% एंड 40% दिखाई दे रहा है. ओके, तो अभी यहाँ पे हमें कंटेंट शो करने हैं. यहाँ पे कंटेंट शो करना है, पेज फाइल HTML फाइल यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो करना है. तो जो फाइल हमें शो करनी है वो फाइल हम क्या करेंगे, कोड विंडो में वो फाइल इंसर्ट करेंगे. सी src एट्रीब्यूट में. सपोज मुझे फर्स्ट इसमें टेबल वाला फाइल मेरा शो करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेबल डॉट html. सेकंड इसमें सपोज मुझे चाहिए फॉर्म वाला फाइल जो हमने क्रिएट किया है, कल क्रिएट किया था ना, फॉर्म डॉट html. ठीक है, ये 2 फाइल्स चाहिए. तो सेव चेंजेस and go to your output window, refresh it, refresh it. See, फर्स्ट पार्टीशन में टेबल फाइल आ गया एंड सेकंड पार्टीशन में
फॉर्म फाइल आ गया। ठीक है। भावना, आई टाइप सेम बट पार्टीशन डोंट शो, व्हाई मैम? कुछ कोडिंग में गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो आपके सामने ही तो मैं कोडिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पे तो आ रहा है ना। ओके, कुछ लिंक में प्रॉब्लम हुआ होगा। आप फाइल का पूरा पाथ दो, आपका फाइल और कोड फाइल, HTML फाइल और कोड फाइल आपका एक जगह पे नहीं होगा, रूट फोल्डर में नहीं होगा, इसलिए आपका शो नहीं हो रहा है भावना। आप ट्राई करो, दोनों फाइल एक ही जगह पे होगी तो ही आप सिर्फ फाइल नेम दे के कर सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि हम फ्रेम से क्या कर सकते हैं, तो पेज को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में। अभी ये जैसे रोज है, यही यहाँ पे हम कॉल्स भी दे सकते हैं, कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, गो टू योर आउटपुट, रिफ्रेश योर आउटपुट विंडो। सी, यू कैन सी, ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। Bhavna will see your query afterwards. Fine. You send me code on WhatsApp. I'll see. Okay. Mm, then abhi in this we have seen only row wise and column wise. Suppose I want mixed type, like कि जैसे कि हमने ये देखा था PPT में। नाउ हमें ऐसे चाहिए कि यहाँ पे एक फाइल शो होना चाहिए, यहाँ पे एक फाइल शो होना चाहिए, यहाँ पे जो यहाँ पे क्लिक करूंगी उसके कंटेंट यहाँ पे शो होने चाहिए। ठीक है, ठीक से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि heading.html फाइल ये फ्रेम में मैं एज अ सोर्स दूंगी। heading.html फाइल इज ऑलरेडी रेडी, ये फाइल मैंने बना के रखा है। Then for this frame also one file I have made, that is assignmentlist.html. assignmentlist.html में मैंने 3 कंटेंट्स यूज किए हैं। हर एक कंटेंट पे मैं क्लिक करती हूँ तो नया फाइल ओपन होना चाहिए। जैसे टेबल क्लिक करती तो टेबल का फाइल ओपन होना चाहिए, लिस्ट क्लिक करती तो लिस्ट का फाइल, फॉर्म क्लिक करती तो फॉर्म का फाइल। ठीक है, ये फाइल भी मैंने अलग से बना के रखा है, हेडिंग का फाइल अलग बना के रखा है, असाइनमेंट लिस्ट का फाइल अलग बना के रखा है। एंड यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रीव्यू करना है। फर्स्ट वी विल सी दिस फाइल इंडिविजुअली, मीन्स एक एक करके हम ये फाइल देखते हैं कि heading.html में क्या है। फाइन, तो फर्स्ट heading.html, हाँ, heading.html फाइल में क्या है अगर आप देखते तो heading.html फाइल में है, मैंने सिंपली एक टेक्स्ट दिया है, दिस इज माय असाइनमेंट वेब पेज, लाइक दिस। ये heading1 HTML फाइल मैंने बना के रखा है। ओके, नेक्स्ट फाइल रेडी है हमारा assignment.html, असाइनमेंट लिस्ट.html। तो ये फाइल भी मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा असाइनमेंट लिस्ट.html, ये फाइल मैंने अलग से बना के रखा है, हेडिंग का फाइल अलग से बना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने OL टैग यूज किया है, सॉरी UL टैग यूज किया है एंड 3 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक भी यूज किया है। टेबल पे क्लिक करती हूँ तो टेबल का फाइल ओपन होना चाहिए, तो टेबल क्लिक करती हूँ तो टेबल का फाइल ओपन हो रहा है। ओके, ये फाइल ओपन हो रहा है। तो अभी लिस्ट क्लिक करती हूँ तो लिस्ट का फाइल ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइल्स कैसे ओपन हो रहे हैं,
इन अनदर वेब पेज, दूसरे वेब पेज में ओपन हो रहे। मुझे चाहिए कि सपोज इधर ही कौन सा विंडो हो या तो पेज पार्टीशन हो, और वो पेज पार्टीशन में मैं जहाँ पे क्लिक करूँ इसके कंटेंट शो होने चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेम टैग। तो पहले ये दो फाइल समझ में आए आपको, मैंने अलग से दो फाइल्स बना के रखे हैं। ओके, अभी हम एक्चुअल फ्रेम फाइल पे जाते हैं। एक्चुअल हमारा फ्रेम फाइल क्या है, ये हमारा फ्रेम फाइल है कि जिसमें तीन कॉलम्स है, तीन कॉलम्स है एंड हेलो, हाँ, यहाँ पे थ्री कॉलम्स वाला फाइल है। अभी हमें क्या चाहिए कि हमारा फाइल कैसे शो होना चाहिए, हमारा फ्रेम पेज कैसे शो होना चाहिए। तो फ्रेम पेज कैसे शो होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास ऐसा है कि ये एक फ्रेम, ये एक रो, ये दूसरा रो, और दूसरे रो में दो कॉलम्स, ठीक है, और ये हमारा फ्रेम सेट। तो इसका भी कोडिंग देखते हैं हम, इसका कोडिंग हम देखेंगे, ठीक है। इसका कोडिंग ये सी, यहाँ पे कितने रोज है, हमारे रोज चाहिए अगर आप वो फ्रेम कंसिडर करते हो तो यहाँ पे हमें दो रोज चाहिए। जो फर्स्ट रो है वो छोटा चाहिए, इसलिए यहाँ पे 30% दिया, और जो सेकंड रो है उसके लिए मैंने 70% दिया, उसके लिए 70% दिया। फाइन, देन ये हुआ एक फ्रेम सेट, ये हुआ एक फ्रेम सेट, सिर्फ हमें इतनी कोडिंग देखनी है। ओके, ये हुआ एक फ्रेम सेट। फर्स्ट फ्रेम में 30% वाले फ्रेम में सोर्स में क्या चाहिए, हेडिंग 1.html फाइल ये शो होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया वो फाइल शो होना चाहिए। फाइन, सेकंड फ्रेम में क्या है, सेकंड फ्रेम में रो, एक ही रो नहीं है 70% वाला, ये 70% डिवाइड हुआ है वापस से 30% एंड 70% कॉल्स में, इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट लिया है। मीन्स एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरा फ्रेम सेट लिया है। पहले दो रोज में फ्रेम को डिवाइड किया, फिर फर्स्ट रो में एक फाइल इंसर्ट किया, सेकंड रो में वापस से दो कॉलम्स बनाए। अभी दो कॉलम्स बनाए तो फर्स्ट कॉलम में आएगा हमारा असाइनमेंट डॉट लिस्ट, ये फाइल, ये भी मैंने आपको अलग से दिखाया कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फाइन, और इसका अभी प्रीव्यू कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड फ्रेम में। थर्ड फ्रेम में कंटेंट हमारे फिक्स्ड नहीं है कि कौन से कंटेंट हमें शो करने हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने src एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, इसीलिए हम ये यहाँ पे src टैग यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कोड विंडो शो हो रहा है सबको, सबको कोड विंडो शो हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि फर्स्ट फ्रेम में आएगा हेडिंग 1 HTML फाइल, सेकंड फ्रेम में आएगा असाइनमेंट लिस्ट डॉट HTML फाइल। ओके, अभी जो थर्ड फ्रेम के कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स कैसे हमारे चेंजेबल है, ये चेंज होने वाले हैं ये कंटेंट्स। ये कंटेंट्स किस पे डिपेंड है, तो असाइनमेंट लिस्ट फाइल में जो मैंने तीन पॉइंट्स दिए हैं, टेबल फॉर्म लिस्ट, ये पॉइंट्स पे डिपेंड है। टेबल पे क्लिक करती हूँ तो टेबल फाइल ये फ्रेम में ओपन होना चाहिए, ये फ्रेम में ओपन होना चाहिए, लेकिन टेबल एक ही फाइल यहाँ पे ये फ्रेम में मुझे शो नहीं करना है। अगर मैं लिस्ट क्लिक करती हूँ तो फॉर्म क्लिक करती हूँ तो फॉर्म ये फ्रेम में ओपन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो जो लिंक में क्लिक करती हूँ, जो वर्ड का हाइपरलिंक में क्लिक करती हूँ, वो वर्ड से रिलेटेड ही हमारी कंटेंट शो होने चाहिए। तो ये क्यों चाहिए, तो इसके लिए हम फ्रेम में नेम टैग यूज कर, नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे।
अभी ये नेम किसका नेम है? फ्रेम का, थर्ड फ्रेम का। मैं सेकंड फ्रेम में असाइनमेंट लिस्ट में जो टेबल या तो फॉर्म या तो लिस्ट में मैं जो भी पॉइंट टेबल क्लिक करूंगी वो फाइल मुझे ये फ्रेम में चाहिए। मीन्स ये फाइल में जो कंटेंट है उसका टारगेट मुझे ये फाइल चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये फाइल के अंदर जाके वहाँ पे टारगेट सेट करना है एंड यहाँ पे उसका नेम सेट करना है। तो मेरे ये फ्रेम का नाम है नेम फ्रेम। ठीक से याद रखो, नेम क्यों यूज करेंगे? तो हमें यहाँ पे फ्रेम में कुछ कंटेंट शो नहीं करने हैं। ये कब कंटेंट शो करने हैं हमें? जब हम कुछ क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। और ये कंटेंट कैसे है? इट इज नॉट अ फिक्स्ड कंटेंट, ये फिक्स्ड कंटेंट नहीं है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फ्रेम में हमने सिर्फ नेम सेट किया है। अभी हमें टारगेट सेट करना है। किसके लिए? तो assignment.html में जो तीनों फाइल्स में ए टैग यूज करके लिंक कर रही हूँ वो फाइल्स मेरे यहाँ पे शो होने चाहिए। तो ये फाइल में जाके हमें टारगेट सेट करना है। ये फाइल में जाके टारगेट सेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये फाइल आ गया फ्रेम में। ये टारगेट, यहाँ पे देखो टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम असाइनमेंट लिस्ट, ये फाइल मैंने यहाँ पे क्या किया है? फ्रेम में इंसर्ट किया है। लेकिन टारगेट किसे देना है? टेबल क्लिक करने के बाद टेबल का फाइल यहाँ पे ओपन होना चाहिए। नेम प्री नाम के फ्रेम में ओपन होना चाहिए। तो टेबल का टारगेट होगा प्री और फ्रेम 3 का नेम होगा प्री। समझ में आ रहा है? यहाँ से सोर्स है और यहाँ पे टारगेट है। लेकिन टारगेट कहाँ पे सेट करेंगे हम? assignment.list.html फाइल में। फाइन, तो हम assignment list .html फाइल में जाके वहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। ओपन दैट फाइल नाउ, we'll open that file in notepad. ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? Everyone can see here I have used URL tag. In URL tag list tag is there to specify our listing document or listing points, table, list one and form. And in that list tag I have used here a tag anchor tag for hyperlink file. तो यहाँ पे अभी टेबल फाइल में हाइपरलिंक कर दी। ओके फाइन, ये फाइल सिर्फ हाइपरलिंक करते href देखे। इफ वी आर यूजिंग ओनली href attribute, it will come, this table.html file will open in another web page, but I want to open it in that frame page. So and that frame name is free. So here we will say target equals to free. Means if we will click on table, the content of table.html file will show in this target free file frame. Fine. In list one also, list one for list one tag file also we will set target as a free. Free is the name of that frame, third frame of our frame set file. So here is the target and in frame set file we will set the name of that frame. Fine. In third file also we use target. So hope you understood the concept of target and name of the frame. Again we will see our that frame window. See here, in frame set file, frame 3 name attribute we have set, and in assignment list.html in particular anchor tag we have set the target frame name free. Okay, now we'll see the output. Again first we will
will see the coding. You can go to code page, that is frame page, frame, see here, see here. In one frame set, another frame set is there, that is called nested frame set. We already discussed here this. Then in second row, we have again divided our page, our second row in 30% and 70% call. So in first column, we will show this file assignment list.html, and in second column, and that is our third frame, we will just show the contents according to the hyperlink of assignment list file. Fine. Now we will run this program. We will run this program. Go to code window. Go to your output window. That is your browser. Okay. Save your code first and go to your output. And refresh it. See, if you can see, this is my first file, heading.html file. This is second file, assignment list.html, and this is my third frame only. In this, I have not set any source of file. Okay, this is for preview. Okay, if I click on table, table content will come in this file. If I click list, then list content will see. If I click on form, form content will get displayed. Okay, fine, understood? So, इस तरह by this we can divide our page, our web page in number of frames, in number of columns, in number of rows. एक्चुअली वेबसाइट का डिजाइन ही ऐसे रहता है, टेबल फॉर्मेट में ही होता है, सिर्फ टेबल बॉर्डर शो नहीं होते, लेकिन हर एक कंटेंट शो होने के लिए एक स्पेसिफाइड सेक्शन एरिया डिसाइड करके रखते हैं, तो ये टेबल फॉर्मेट में होता है. फाइन, फ्रेम सेट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया फ्रेम सेट? ओके, बैक टू अवर पीपीटी. होप सो ये आपको समझ में आ गया है. मैम यूजर फॉर्म वाला कोडिंग देखना है. यूजर फॉर्म कोडिंग आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप. आई विल शेयर all code files on WhatsApp. Okay, this frame set file also I will share on WhatsApp. Fine. Now next is small frame. Now if in table format, what we have seen, a number of rows and number of columns, but that is fixed space. But if I want to insert a particular area in between or randomly, for that we can use small frame, that is called as iframe. That is called as iframe. An HTML iframe is used to display a web page within a web page. एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज शो करने के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है कि हम रैंडमली कहीं पे भी ये यूज कर सकते हैं, छोटा सा फ्रेम. ठीक है, so for that we will use here iframe tag. In iframe tag we have to give source, src, then style, then style and width of that frame. ये एक फ्रेम है, स्मॉल फ्रेम. इसका हम width and height शो कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सेल में. We can give pixel size of that particular small frame, that is a iframe, and then in that particular frame we can show different content of HTML file.
So this frame is randomly where you can insert that small frame. For that purpose, we will use iframe. Okay, now back to our coding. Iframe. Open code file. Now this is the sharing. See here, iframe source table.html means I want to show table content in a small piece of area in a same web page. So that area height is 200 pixel and width is 300 pixel. Okay, then this is my first iframe and this is second iframe. Source, height, width are the attributes of that iframe. Attributes of that iframe. So we'll see this its output. Save the file. Go to your output window, that is go to your browser. Go to your browser. Just a second. And run the program. Refresh your web page. See, small iframe example. This is small area in which I am showing table content. This is again another iframe, small frame. In that I am again showing table content. Wait, we will change table content. We will change table content. Or this file, we will change this file. We have form file, no? Form.html. And in second frame, we will insert list1.html. List1.html. Save the file. Go to your output to browser window. Refresh the page and see the output. See, in this small frame only, it will show you form.html file. And this is in second iframe, small frame. This is a big frame. This is small frame because here we have given that dimension, no? Height and width. We have given, no? Height and width. Okay. Suppose I want to write here one word. Say suppose table and form. Form. What I want to give this word link. Means by clicking on this word, I want to show its content in this frame. ओके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, फॉर्म पे मैं क्लिक करती हूँ तो फॉर्म फाइल मेरा ये फ्रेम में ओपन होना चाहिए, ये फ्रेम में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, पहले तो हमें लिंक देना है, इसलिए href file name, which file you want to show, form.html file. ओके, नाउ हम सिंपली अगर ये क्लिक करेंगे, सिंपली सिर्फ href एंड a टैग यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म क्लिक करते ही वो फाइल अदर वेब पेज में ओपन होगा, बट वी वांट to open that file on same web page in this iframe area. Okay, for that we have to give the target.
Target means where we want to open that file. I want to open that file in first frame. I have first given name. iframe name. Give here name. What name? First. Understood? See, ये एक फ्रेम है. ये फ्रेम का नेम मैंने क्या सेट किया है? फर्स्ट. फ्रेम का नेम क्या सेट किया है? फर्स्ट. फर्स्ट फ्रेम में क्या शो होना चाहिए? क्या शो होना चाहिए? तो form.html फाइल. लेकिन इसके लिए हमने हाइपरलिंक टैग यूज किया है. हाइपरलिंक से क्या होता है? जो भी पेज लिंक है वो डायरेक्टली दूसरे पेज पे ओपन होता है. हमें सेम पेज पे जो फ्रेम है स्मॉल उसमें ओपन करना है. इसलिए हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे? टारगेट सेट करेंगे. फॉर दैट पर्पस वी यूज हियर टारगेट एट्रीब्यूट. ओके, अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? ओके. Okay, then go to your output window, refresh it. Wait, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट शो होना चाहिए. तो यहाँ पे अभी SRC का जरूरत नहीं है. नो नीड टू राइट SRC. वी वांट अ ब्लैंक स्मॉल फ्रेम. ब्लैंक स्मॉल फ्रेम. Go to your output window and see. सबको दिखाई दे रहा है आउटपुट? यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद फॉर्म के कंटेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं. ओके, क्लिक करने के बाद अगर क्लिक नहीं करते हो तो नॉर्मल फ्रेम शो होगा. ठीक है, सिंपल फ्रेम शो होगा. क्लिक करते तो इसके कंटेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे. ऐसे ही आप यहाँ पे कौन सा भी वेबसाइट का लिंक एड्रेस भी दे सकते हो और वो क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट कहाँ पे ओपन होनी चाहिए? यहाँ पे ओपन होनी चाहिए. ऐसे आप कर सकते हो. फाइन. समझ में आ गया सबको? तो बैक टू अवर पीपीटी. तो आपको ये फ्रेम, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि टू डिवाइड अवर वेब पेज इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट वी विल गिव नेम, फ्रेम नेम. Okay, and in each frame we will insert a HTML content. Okay, and if you want to insert a small frame or a random frame, you can use iframe. Okay, fine. यहाँ तक समझ में आया सबको? Okay, so next part is our front page. तो आज तक हमने जो देखा कि HTML में नोटपैड में हम कोडिंग कर रहे थे और उसका आउटपुट हम देख रहे थे ब्राउजर, गूगल क्रोम या तो डिफरेंट ब्राउजर से वहाँ पे देख रहे थे. तो अभी हमें देखना है कि मार्केट में बहुत सारे वेब डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल है. वो टूल्स में डिफरेंट फीचर्स है और वो रेडी टू यूज फीचर्स है कि बटन क्लिक पे हम वो टूल इंसर्ट कर सकते हैं या तो वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं. हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं. तो इसका हमने लिस्ट भी देखा था लास्ट सेशन में. फ्रंट पेज, ड्रीमवीवर, रूबी वगैरह, दीज आर द वेब डेवलपमेंट टूल्स. तो उसमें से वेरी बेसिक टूल इज फ्रंट पेज एंड इट इज actually it is not used. It is existed over 18 years but not we are not using now. But it is very good for beginners. So I'm suggesting you to please practice on this web development tool, front page. What is front page? It is a program made by Microsoft to help people web pages and full website. It was on Microsoft Office until 2003. मीन्स इट इज MS ऑफिस पैकेज के साथ ये फ्रीली आता था पहले. फ्रंट पेज इज WYSIWYG. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. वेब एडिटर.
Front page is a web editor. Front page is a Microsoft program used to create and edit HTML documents. It can be used to create large complex website. It can be used. और ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी आप इस पे प्रैक्टिस करो. इसका अगर आपको लिंक चाहिए और ये फ्री इजीली और फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर, तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप प्रैक्टिस करो. दूसरा भी है, ड्रीम वीवर भी है. फ्रंट पेज एंड ड्रीम वीवर. ड्रीम वीवर सपोर्ट नंबर ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. फ्रंट पेज क्या है, ये सिर्फ HTML को सपोर्ट करता है, लेकिन ड्रीम वीवर क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है. VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, jQuery. दीज आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्यों हमें ज़रूरत है, हम नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है. इससे पहले हम CSS करना, अभी आज हमारा HTML खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट सेशन से हम CSS स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट देखेंगे. तो स्क्रिप्टिंग भी हम सीखने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे थे फ्रंट पेज सिर्फ HTML वेबसाइट्स के लिए यूज करेंगे और ये स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज करेंगे. फ्रंट पेज सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट के लिए. स्टैटिक एंड डायनेमिक, जैसे दो टाइप के वेबसाइट्स होते हैं. तो स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ फिक्स कंटेंट शो करता है एंड डायनेमिक वेबसाइट के कंटेंट्स ऑलवेज अपडेट होते रहते हैं, ऑलवेज फ्लक्चुएट, चेंज होते रहते हैं. तो उसके लिए ड्रीम वीवर हम यूज करेंगे. डायनेमिक एंड स्टैटिक दोनों के लिए ड्रीम वीवर यूज करेंगे. और फ्रंट पेज ये किसके लिए यूज करते हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए. आपको एक बार मैं फ्रंट पेज का शो करती हूँ. आई हैव इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर फ्रंट पेज. तो ओपन करते हैं पहले फ्रंट पेज. टू स्टार्ट आपको अगर चाहिए इसका लिंक, तो मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगी. फ्रंट पेज का फ्रंट पेज ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन. दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी फ्रंट पेज. अगर आप यहाँ पे देखते हो फ्रंट पेज में देखो, ये है टाइटल बार, देन मेन मेनू बार, देन ये स्टैंडर्ड टूल बार, देन ये एडिट बार, और ये एक्चुअल हमारा पेज एरिया जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे एंड आउटपुट भी देखेंगे. अभी ये पेज को भी डिवाइड किया है उन्होंने. एक तो डिजाइन में, स्प्लिट डिजाइन में सिर्फ इट विल शो आउटपुट डिजाइन. इन स्प्लिट इट विल शो कोडिंग प्लस आउटपुट. प्रीति स्क्रीन शो हो रहा है? अभी शो हो रहा है? ओके. हाँ, तो यहाँ पे डिजाइन व्यू में सिर्फ आउटपुट व्यू दिखाएगा. स्प्लिट व्यू में आपको कोड विंडो एंड आउटपुट दोनों शो करेगा. कोड में सिर्फ कोड शो करेगा, प्रीव्यू में आपको आउटपुट शो करेगा. तो हम स्प्लिट पे देखते हैं. ये आपका कोड विंडो है और ये आपका डिजाइन विंडो. डिजाइन विंडो में क्या होगा कि आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. जैसे कि सपोज मुझे एक टेबल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल में जाओ. इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे टेबल अलग दिया है. इंसर्ट टेबल, गिव नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सपोज आई वांट 4 रोज एंड 5 कॉलम्स. बाकी की यहाँ पे सेटिंग से आप देख लेना ये सेटिंग, देन ओके करो तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं. ये हमारा एक्चुअल वेब पेज है, यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग कोड यहाँ पे देखो जनरेट हो रहा है. समझ में आ रहा है? कोड जनरेट हो रहा है. सपोज मुझे ये 4 सेल्स मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स मर्ज करने हैं. तो टेबल में जाके मर्ज सेल्स करो. देखो मर्ज हो गया. देखो मर्ज सेल का यहाँ पे कोड अपने आप जनरेट हो गया. कॉल स्पैन 2, रो स्पैन 2. एक असाइनमेंट मैंने दिया था ना, अगर हम हमारे पीपीटी में देखते हैं तो
असाइनमेंट टेबल वाला यहाँ पे ये टेबल बना सकते हो आप इजीली। अभी यहाँ पे हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा का ऐसे टेबल वहाँ पे बनाना है, सिर्फ इंसर्ट करना है। जो टूल्स दिए हैं वो टूल्स हमें सिर्फ यूज करने हैं, यूज करके वेब पेज बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं, सपोज ये मुझे मर्ज करना है, वापस से टेबल टूल में जाओ, मर्ज सेल्स, यहाँ पे सपोज मुझे कुछ तो टेक्स्ट टाइप करना है, कंप्यूटर, ये टेक्स्ट टाइप किया, इसको मुझे बोल्ड इफेक्ट देना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका साइज इंक्रीज करना है। दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रही हूँ अप्लाई, वैसे वैसे यहाँ पे कोड क्रिएट हो रहा है। सी, कोड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये तीनों टैग्स दिए। अगर सपोज मुझे और भी बड़ा साइज चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। समटाइम्स साइज में ये प्रॉब्लम करता है, टैग्स के साइज में प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, देखो 3 साइज बहुत छोटा हो गया, और अगर मैं 30 करती हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ तो आ गया। ठीक है, सपोज मुझे ये क्लिक करने के बाद इसे हाइपरलिंक देना है, सिलेक्ट करो इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या करना है आपको, आपकी फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म फाइल सपोज, तो क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करो तो ही हैंड मार्क आएगा और आप लिंक ओपन कर सकते हो। ठीक, फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म फाइल। समझ में आ रहा है? बैक करोगे तो वापस से आपके फाइल में आ जाओगे। अभी यहाँ पे है इंसर्ट फ्रेम, फ्रेम इंसर्ट करने के लिए भी है इंसर्ट आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम। ठीक, यहाँ पे इंसर्ट किया, सपोज जो कंप्यूटर का लिंक, एक और मैं यहाँ पे कंटेंट लेती हूँ, लिस्ट, लिस्ट क्लिक करने के बाद उस लिस्ट फाइल ये फ्रेम पेज में ओपन होना चाहिए। तो लिस्ट सिलेक्ट करो, इंसर्ट हाइपरलिंक, कौन सा फाइल आपको लिंक करना है, सिलेक्ट दैट फाइल, सपोज ये फाइल, देन सी हियर टारगेट फ्रेम, टारगेट फ्रेम, आपको टारगेट फ्रेम सेट करना है, कौन सा है, ये जो फ्रेम इंसर्ट किया है ये इसका नेम है I1, ओके, और ओके करना है। सी, लिस्ट क्लिक करते ही उसके कंटेंट फ्रेम में आ जाएंगे। लिस्ट फ्रेम का नेम, फ्रेम नेम सेट करना पड़ेगा, फ्रेम नेम तो ऑलरेडी है। क्यों नहीं शो रहा है, देखते हैं क्यों नहीं शो रहा है। यहाँ पे नेम तो है I1, फ्रेम का नेम I1 है, और SRC, ये SRC निकाल दो,
ऐसे भी हम कोड में जाके, हमें थोड़ा सा कोडिंग अगर पता होगा तो हम ऐसे कोड में जाके भी थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. एंड देन लिस्ट, लिस्ट वर्ड इधर लिखा है लिस्ट, यहाँ पे ये I1 टारगेट सेट किया है और ये फाइल हमारा ओपन होगा. ओके, अभी देखते हैं. क्या हो रहा है इसको. दूसरा इस पे इंसर्ट करके देखते हैं. स्टार्ट फिलिंग पेन. आई पेन. ओके, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओके, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं बताती हूँ आपको, देखते हुए बताऊंगी. व्हाट्सएप पे बता दूंगी इसका, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 1 o'clock. लेकिन आप यहाँ पे फ्रंट पेज के टूल्स, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स से देखो क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो आपके पेज में. डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट किया, HR टैग लाइन का आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो. ये सब इजी टूल्स दिए हैं, ये आपको यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोडिंग जनरेट होता है, तो आप देख सकते हो. हाँ, यस यस, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है. ठीक है, तो बैक टू आवर PPT. तो होप सो आपको ये समझ में आ गया है. टूल्स, फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम सेट एंड स्मॉल फ्रेम. तो इस पे आप एक असाइनमेंट करो, जो आज मैंने दिखाया था यही असाइनमेंट आपको करना है. आपको क्या करना है कि अब तक आपने जितने भी HTML की असाइनमेंट्स बनाई है वो सब HTML के असाइनमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट करना है, और हर एक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड फाइल यहाँ पे ओपन होनी चाहिए. तो ये आज का आपका असाइनमेंट है. ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से. क्वेरी होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, आई विल help you, I will message you, give reply. Okay, fine. So here we will find out, we will stop our class. Okay. Thank you all. Parul madam, thank you.